Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very important segment of our program, in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen, and just after this we translated these verses, particularly for those who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation, but also in the end we give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. And I pray God grant you the capability of reciting Holy Quran, understanding it, and act upon it. Amen. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. In Roman, وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. In Urdu, और आपने एक रोज परिंदों का जायजा लिया तो फरमाने लगे, क्या वजह है कि मुझे आज हुदहुद नजर नहीं आ रहा, या वो है ही गैर हाजिर. In English, and he reviewed the birds. Then he said, what happened to me that I do not see the hoopoe, hudhud, or he is really not present? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. In Urdu, अगर वो गैर हाजिर है तो मैं जरूर उसे सख्त सजा दूंगा, या उसे ज़बह ही कर डालूंगा, या उसे लाना पड़ेगी मेरे पास कोई रोशन सनद. In English, I shall surely punish him severely, or shall slaughter him, or he should bring me a clear authority. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. In Roman, فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. In Urdu, बस कुछ ज्यादा देर न गुजरी कि वो आ गया और कहने लगा, मैं एक ऐसी इत्तला लेकर आया हूं जिसकी आपको खबर न थी, और वो ये कि मैं ले आया हूं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर. In English, then the hoopoe did not stay long, and he came and said, I have seen that which you have not seen,
and I have brought to you a certain news from the city of Saba. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. In Roman, إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. In Urdu, मैंने पाया एक औरत को जो उनकी हुक्मरां है और उसे दी गई है हर किस्म की चीज और उसका एक अजीम शान तख्त है. In English, I saw a woman reigning over them, and she has got of everything, and she has a great throne. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. In Roman, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. In Urdu, मैंने पाया है उसे और उसकी कौम को कि वो सब सजदा करते हैं सूरज को सिवाय अल्लाह ताला के और आरास्ता कर दिए हैं उनके लिए शैतान ने उनके ये मुशरिकाना आमाल, बस उसने रोक दिया है उन्हें सीधे रास्ते से, बस वो हिदायत कबूल नहीं करते. In English, I found her people prostrating before the sun, leaving Allah, and the devil Satan, adorning their deeds in their eyes, has barred them from the straight path so that they do not get the way. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक आपने समाअत किया, आपने लर्न किया, यकीनन आपने इससे इस्तिफ़ादा किया होगा. आज के सबक का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का क़िस्सा और उनके वाक़यात बताए जा रहे हैं और आज के सबक में हम देखते हैं कि हुदहुद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान जो डायलॉग्स और जो मुकालमा हुआ, अल्लाह इन आयात में वो बयान फरमा रहा है. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि हमारा परिंदा हुदहुद कहाँ है, वो गैर हाजिर है. आप सख्त बरहम होते हैं. कुछ ही देर में हुदहुद हाजिर हो जाता है और कहता है कि जनाब, मैं मलका सबा के मुताल्लिक़ एक ख़बर लाया हूँ और वो ये कि वो मलका बहुत अज़ीम शान थ्रोन या तख्त की मालिक है और उसकी बहुत बड़ी सल्तनत है और जितने भी लोग हैं वो सब के सब शैतान की पैरवी करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करते. और यहाँ पर हुदहुद एक अजीब और गरीब कलिमा कहता है, फ़मा क़त गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, कि मैं ऐसी ख़बर लाया हूँ जिसकी आपको इत्तला नहीं है. अब हुदहुद ने ये क्यों कहा? यकीनन ये बयान हुदहुद का है. सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में ये नहीं कहा कि तू सच कह रहा है, मुझे ख़बर नहीं थी. हुदहुद का अपना अंदाज़ था, वो अपनी जो गैर हाज़िरी का जवाज़ देना चाहता था. कहा था मैं जनाब ऐसी जगह से आ रहा हूँ कि जो
जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं थी, खबर नहीं थी। कि मकसद ये है कि इस तरफ आपकी इंटेंशन, आपकी तवज्जो नहीं थी। मैं आपकी तवज्जो उस मलका की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि यकीनी तौर पर जिसका बहुत बड़ा ताज है, तख्त है, लेकिन वह मुसलमान नहीं है। चुनाचे ये इत्तला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब दी जाती है तो इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में हम पढ़ेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस तरह उसे अपनी बारगाह में दावत देते हैं कि यहाँ पर आकर मुसलमान हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हैं। अल्लाह ने परिंदों की, चरिंद की, जानवरों बहाइम की ज़बान का मलिका उन्हें आता फरमाया था। वो उनको जानते थे, समझ लिया करते थे। जिन्नात पर उनको हाकिम बनाया था और फिर फरमाया वसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअम्रिही रुखाआ कि हर किस्म की हवा को उनके ताबे कर दिया था। लिहाजा इन मुकालमे से ये भी पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हुदहुद का मुकालमा, ये बताना मकसूद है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेर नगी सब कुछ कर दिया है, लेकिन अल्लाह चाहे तो बहुत सी चीज़ें अंबिया से भी छुपा दिया करता है जो उसकी हिकमत का तकाजा हुआ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि नबी को इल्म नहीं। याद रखिए कि नबी का इल्म अल्लाह की आता से हुआ करता है और नबी का इल्म अल्लाह के इल्म का बाज हुआ करता है। और जो समंदर और कतरे को भी निस्बत नहीं है, नबी निस्बत है अल्लाह और नबी के इल्म को, वो भी निस्बत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने तमाम अंबिया को इल्म अता फरमाया और तमाम अंबिया के उलूम को जमा कर लिया जाए तो हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मकाम पर नहीं पहुँच सकते। यही हक़ है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हक़ को एडॉप्ट करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।